Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, today date is 2nd 9 2020. Now chapter number I am teaching you chapter number 15. So the coastal plains and island. So student, we have completed the Deccan Plateau chapter number 14. We have completed book exercises and question answers of the chapter in our previous video. Okay student, so today we will start with the new chapter, and the name of the new chapter is the coastal plains and islands. Okay, so student, all of you open page number 92 of your book and take one rough copy pencil with you. What are the important points will come in the chapter? You underline that points, because many one word questions are asked from these important points. And if there is any doubt, student, you can ask your doubt in online doubt session. Okay, so open student page number 92. So the name of the chapter is coastal plains and islands. So student, before starting the chapter, I want to discuss some keywords with you, so that when these keywords come in the chapter at the time of explanation, then you can understand the topic easier. Okay, so let's start with the keywords, and after that I will explain you coastal plains and islands of India. So the first word is so what is the coast? Okay, so the place, see student, what is coast? The place where the sea water touch the land. Is it clear? So what is coast? Coast is the place where sea water. I am not talking about the river. I am talking about the sea. So coast, the place where the sea water touch the land. That place is known as coast, because this is very important for your understanding, because the name of the chapter is coastal plains. In this chapter we will study about the coastal plains of our country, that is India. So the water of the sea where it touches the land, that place is known as coast. Now see the second keyword. Second keyword is harbor. So a place along the coastline which is deep enough for ship to dock near the land. Okay, we know that harbor is the place along the coastline, or which is deep enough so that the ships can be docked near the land. ठीक है, हार्बर्स वो प्लेस होती है जहां शिप्स खड़े होते हैं, और शिप्स लैंड पे नहीं खड़े होते हैं, वाटर में. तो शिप क्या है, आपको पता है बेटा, शिप क्या होती है, बहुत बड़ी होती है. ठीक है, शिप का साइज बहुत बड़ा होता है. तो ये काफी डीप वाटर होता है यहाँ. ठीक है, बहुत गहरे होते हैं जिससे कि शिप खड़ी हो सके वहां पे. ठीक है, वहीं से शिप से सामान भी उतारा जाएगा, शिप में सामान रखा भी जाएगा, पीपल्स भी वहीं से चढ़ेंगे. सो हार्बर इज द प्लेस वेयर द शिप्स टू डॉक नियर द लैंड. और ये कहाँ होती है, ए प्लेस अलोंग द कोस्ट लाइन. ठीक है, ए प्लेस अलोंग द कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन वही हो गया जो अभी आपको बताया था, द प्लेस वेयर द सी वाटर टच द लैंड. तो लैंड के जो कोस्ट लाइन जो होगी आपके हार्बर होगा, ए प्लेस अलोंग द कोस्ट लाइन. ठीक है, और जो कि इतनी ज्यादा डीप हो कि जिससे कि उसमें आसानी से जहाज खड़ा हो सकता है.
ठीक है, वहीं जहाज से सामान निकाला भी जाएगा और वहीं जहाज पे सामान रखेंगे भी। इज इट क्लियर? सो दैट इज द हार्बर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्ट। व्हाट इज पोर्ट? ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्ट। जैसे बेटा, वी आर लिविंग इन विच सिटी? वी आर लिविंग इन सिटी वाराणसी। हम लोग कहाँ रह रहे हैं बेटा? वाराणसी। एंड वाराणसी इज फेमस फॉर द घाट्स। देयर आर लॉट ऑफ घाट्स अराउंड द रिवर गंगा एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल विच आर लिविंग नियर द व्हाट? नियर द रिवर। ठीक है, तो बनारस क्या गंगा रिवर के बैंक पे, किनारे पे बसा हुआ बहुत बड़ा एक शहर है। ठीक है, इसी तरह हार्बर्स जहां वो प्लेस होती है जहां पे जहाजों को खड़ा करते हैं। ठीक है, और सो पोर्ट क्या होगी? पोर्ट ए सिटी विच ग्रोज अराउंड ए हार्बर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि रिवर गंगा के किनारे पे पूरा बनारस शहर बसा हुआ है ना, इसी तरह अब हार्बर वो प्लेस है जहां पे शिप्स खड़े होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द पोर्ट? पोर्ट इज अ प्लेस और यू कैन से सिटी विच ग्रोज अराउंड ए हार्बर। अब जहां पे सी समुद्र के किनारे होते हैं उसके अगल बगल देखो कितने लोग बसे होते हैं, एक पूरा शहर सा बस जाता है। ठीक है, बहुत लोग सी के जैसे रिवर्स के बैंक पे किनारों पे शहर बसे हुए हैं, वैसे सी के किनारों पे भी शहर बसे हुए हैं। ठीक है, सो ए पोर्ट इज अ प्लेस विच ग्रोज अराउंड ए हार्बर। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है लेगून। देखो बेटा, ये साल्ट वाटर लेक्स हैं। ठीक है, नमकीन खारे पानी की क्या ये झीलें हैं, लेक्स हैं। ठीक है, जो कि अब समुद्र के सी वाटर से क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं, जो कि सी वाटर से सेपरेट हो जाती हैं। व्हाट आर लेगून्स? लेक्स ऑफ सॉल्ट वाटर दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सी। दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सी, दैट इज नोन एज लेगून। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा लाइट हाउसेस। नेक्स्ट इज so what are lighthouses, student? These are very tall buildings, okay, in the sea by near the coastline होती हैं। ठीक है, ए टॉल बिल्डिंग बाई और इन द सी। ठीक है, या तो विथ अ स्ट्रॉन्ग लाइट टू वार्न शिप दैट देयर आर रॉक्स। देखो सी में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे बहुत सी चट्टाने हैं, तो ये टावर लाइक बिल्डिंग्स होती हैं सी में, जो जिनमें बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है। अगर दूर से ही शिप को जो शिप का जो कैप्टन है, बाई सीइंग द लाइट ऑफ ए लाइटिंग हाउस, ये क्या करती है? वार्न करती है शिप्स को कि दिस प्लेस इज अ डेंजर। ठीक है, यहां पे खतरा है। ठीक है, सो दैट इज देयर लाइट हाउस, दैट इज देयर लाइट हाउस। नेक्स्ट इज आइलैंड। Next is student island. So what is island? It is a part of a land. Okay, what is a island, student? It is a part of a land. जैसे मान लो ये मैंने लैंड बना दिया। ठीक है, ये पूरा लैंड है। आई एम शोइंग इट विद डॉट 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 लैंड। नाउ फ्रॉम ऑल द साइडेड ये क्या है? वाटर है। ओके, सो द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। ठीक है, मतलब जमीन का एक लैंड का टुकड़ा जिसके चारों तरफ आप क्या देखोगे? वाटर ही वाटर है। दैट इज नोन एज आईलैंड, दैट इज नोन एज आईलैंड। एक क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए अब बेटा। कोस्ट, कोस्ट इज व्हाट इज अ कोस्ट? द प्लेस वेयर द सी वाटर टच द लैंड, जहां सी वाटर लैंड को टच करता है, दैट इज अ कोस्ट। हार्बर, हार्बर इज अ प्लेस अलोंग द कोस्ट लाइन में, ये ऐसी प्लेस होती है जो डीप इनफ होती है जहां पे शिप्स खड़े हो सकते हैं, शिप से सामान उतारा भी जा सके और उसमें लोडेड भी किया जा सके।
एंड व्हाट आर द पोर्ट्स, जिस तरह रिवर गंगा के किनारे पे कौन शहर बसा है, वाराणसी। इन द सेम मैनर अराउंड दीज पोर्ट्स, अराउंड दीज हार्बर्स, ठीक है, जो बंदरगाह हम लोग कहते हैं ना, पोर्ट, तो ये जो उनके अगल बगल जो शहर बस जाता है उसी को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेगून, लेगून्स आर द साल्ट वाटर ऑफ ए लेक, खारे पानी की झीलें हैं लेगून्स, और ये क्या है, सी वाटर से सेपरेट, अलग हो जाती हैं। लाइट हाउसेज, दिस आर द टॉल बिल्डिंग्स बाई और इन द सी, ठीक है, और ये क्या है, शिप को वार्न करती हैं कि दिस एरिया इज वेरी डेंजरस, देयर आर लॉट ऑफ रॉक्स इन दिस एरिया। आइलैंड क्या है, पार्ट ऑफ ए लैंड, ओके, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, पार्ट ऑफ ए लैंड which is surrounded by water from all the side, that is your island, that is your island. Now I explain you coastal plains of India. First I draw one map of India on the board, and with the help of that picture I will explain you coastal plains and islands. Okay. Now see this picture on the board. हमने पेंसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू. सो हियर नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट, लेट अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी विल continue with the topic. Okay, sir, this portion of the Indian, this is the south portion of the Indian, this is the south portion of the Indian, and it is surrounded by three, this land is surrounded by three sides with the water. If you see in the east, when we are talking about the east, then in the east it is surrounded by Bay of Bengal. Is it clear? And when we are talking about the west, then it is surrounded by Arabian Sea. Arabian. Okay, if we are talking about the west, it is surrounded by Arabian Sea, and if we are talking about the south, 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 then it is surrounded by Indian Ocean. See, so in the west it is surrounded by Arabian Sea, in the east it is surrounded by Bay of Bengal, and in the south it is surrounded by a Indian Ocean. Now student, I explained you in a chapter 14, Deccan Plateau. It is a triangular shape. It is in this manner. In this manner it is a, okay, I rub it, I draw it again. So this is a triangular shape Deccan Plateau, and what I explained you at the time of a Deccan Sea, this is the Indian peninsular.
सो प्लेट्यू दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज सराउंडेड, दिस पार्ट ऑफ ए लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन थ्री साइड, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, वेस्ट अरेबियन सी एंड साउथ इंडियन ओशन. ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रफ ड्राइंग बनाई है, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, upper part is a central highland and this is a Deccan plateau because Narmada river divided into two parts, that is Deccan plateau, that is central highland of India and that is the Deccan plateau. Okay, so at that time I explained you student where we have the Deccan plateau. Deccan plateau is between, किसके between है? Deccan plateau is between western Ghats and eastern Ghats. मैंने यही आप लोगों को बताया था ना, ये जो आपका प्लेट्यू पोर्शन है बीच वाला जो, दिस इज बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वहां हमने वर्ड यूज किया था घाट्स. तो और मैंने आप लोग को बताया था कि वेस्ट में कंटिन्यूअस माउंटेन्स रेंज है और ईस्ट में भी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, और उसके बाद ये तुम्हारे पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, उसके बाद तुम्हारे प्लेट्यूज हैं. फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट है तो ये भी पूरी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, ठीक है. अगर ईस्ट में आप देखते हो तो ईस्ट में भी कंटिन्यूअस ये क्या है, माउंटेन रेंज है. इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था वेस्ट और ईस्ट में दोनों कंटिन्यूअस माउंटेन्स रेंज है और इन माउंटेन्स रेंज के बीच में ये डेक्कन प्लेट्यू है. आई बात समझ में? अब देखो स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज द वेस्ट कोस्ट एंड वेयर इज द ईस्ट कोस्ट. ठीक है, अब इसको समझो आप. अब ये जो स्ट्रिप है, पतली सी ये जो स्ट्रिप है, इसे थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये जो बेटा स्ट्रिप है, ये व्हाट इज दिस? सी, अब देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये जो तुम्हारा प्लेट्यू पोर्शन था, ट्रायंगल प्लेट्यू पोर्शन, वो जो अपने बात की थी सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यूज की. सो ये क्या है आपके, ये वेस्टर्न घाट्स हैं. घाट्स क्या थी? माउंटेन रेंज थी. व्हाट आर वेस्टर्न घाट? दैट इज द माउंटेन रेंज, जो मैंने ऐसे करके दिखाया जिगजैग मैनर में. व्हाट इज इट? दिस इज द कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज. वेस्ट वाली माउंटेन रेंज को हमने बोला था बेटा वेस्टर्न घाट्स, एंड ईस्ट वाली माउंटेन रेंज को हमने बोला था बेटा ईस्टर्न घाट्स. नाउ वेयर इज दिस वेस्टर्न? अब हम लोग को, मैं आपको अब ये बताऊंगा वेयर इज द वेस्ट कोस्ट लाइन एंड वेयर इज द ईस्ट कोस्ट लाइन. अब हम, आई विल टेल यू वेस्टर्न कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन या कोस्टल प्लेन वर्ड यूज कर सकते हो. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ ठीक है, अब हमें समझना है व्हाट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड व्हाट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब ये जो ब्लैक 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 मैंने थोड़ा आपको दिखाया, यही जो आपकी स्ट्रिप दिख रही है, इज इट क्लियर? ये जो आपको ब्लैक स्ट्रिप मैंने करके दिखाई थोड़ी सी, यही जो आपके प्लेन्स लैंड है, यही आपके प्लेन लैंड्स हैं.
इधर वालों को हम लोग वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में है। जैसे घाट का नाम कैसे पड़ा था, इधर वाले वेस्ट में थे तो दे बिकम वेस्टर्न घाट, इनकी व्हाट इज द डायरेक्शन ईस्ट थे तो दे बिकम ईस्टर्न घाट्स। नाउ दिस स्ट्रिप, जो पतली सी आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर से जो मैंने हाईलाइट की है, थोड़ी डार्क की है, दिस इज योर व्हाट इज दिस, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। और जो इधर मैंने डार्क लाइन से एक स्ट्रिप दिखाई है, ये आपके क्या है बेटा, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। एक क्विक रिकैप्चुलेशन करेंगे इसकी पूरी और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने ठीक है आप लोग को बताया कि इंडियन पेंसुलर प्लेट्यू, इंडियन पेंसुलर प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोर्शन इंडिया का है, दिस इज इन पेंसुलर प्लेट्यू रीजन है। क्यों? इट इज triangular in shape and from all three side it is surrounded by a water bodies. From the west it is surrounded by Arabian Sea, in the east it is surrounded by Bay of Bengal, and in the south it is surrounded by a Indian Ocean. Now see, जब हमने इसकी बात की थी, प्लेट्यू की बात की थी, तो ये जो मैंने zigzag zigzag थी, व्हाट इज दिस, वेस्ट में ये पूरी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है एंड हियर ईस्ट में कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। सो वेयर इज दिस प्लेट्यू, जो प्लेट्यू क्या है, इसके बीच में है, किसके बीच में, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में आपको मैंने प्लेट्यू पढ़ाया था। ठीक है, अब बात आती है वेयर इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने एक स्ट्रिप बनाई है वेस्ट में, ये माउंटेन्स के बाद का लैंड है। ठीक है, ये पूरी माउंटेन रेंज है, इन माउंटेन से टच हुए ये क्या है, लैंड है, यही क्या आपका वेस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, और अब इधर क्या है, इधर भी ये माउंटेन से टच हुए लैंड है। और व्हाट इज हियर, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ सी वाटर, बे ऑफ बंगाल है, सी का वाटर, और इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है, इंडियन ओशन है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब देखो बेटा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में, किसके बीच में ये बना, इधर से ये क्या है, वेस्ट घाट है इसके, क्योंकि ये देखो, इस पे फोकस करो, फोकस ऑन दिस पोर्शन, इस पोर्शन पे फोकस करिए आप। दिस इज द, इधर आप कंटिन्यूअस क्या देख रहे हो, इसे मैंने क्या शो किया है, माउंटेन्स बताया, कंटिन्यूअस माउंटेन्स रेंज, व्हाट आई से, इट इज अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। सो see on this side here it is a continuous mountain range, then there is a land, और अब इसके यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर, वाटर ऑफ ए अरेबियन सी, वाटर ऑफ ए अरेबियन सी। तो अब बेटा ये जो स्ट्रिप बनी, यही स्ट्रिप आपकी क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इस तरफ वेस्ट वाले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे, और दे लाई बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में होता है, जैसे 6 और 8 के बीच में क्या आता है, सारे जानते हैं 7 आता है। व्हाट कम्स बिटवीन 6 and 8, आंसर इज 7। इन द सेम मैनर हियर दिस इज अ कंप्लीट रेंज ऑफ ए माउंटेन, एंड फ्रॉम दिस साइड आप इधर से लोगे, राइट से क्या पूरे माउंटेन, अगर लेफ्ट से ले रहे हो तो अरेबियन सी का क्या है, वाटर है, और इसके बीच में ये लैंड का पोर्शन है। दिस इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ हियर आल्सो सी व्हाट इज दिस, दिस इज हियर, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ क्या था, अरेबियन सी थी, सो हियर इट इज बे ऑफ बंगाल, और ये रही आपकी स्ट्रिप। तो स्ट्रिप के इधर क्या है, ये सब मैंने क्या दिखाया है, माउंटेन्स। ओके, व्हाट आर दीज, ओके आई राइट ए गुड हैंड राइटिंग, नहीं तो माउंटेन्स को तुम लोग पता नहीं क्या समझ लोगे। दीज आर माउंटेन्स, इन्हें मैंने माउंटेन्स बताया। ठीक है, इन्हें मैंने माउंटेन्स बनाया, तो ये माउंटेन और इधर है बे ऑफ बंगाल का वाटर। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रिप बनी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप मैंने डार्क करके मार्कर से शो की है, यही आपके क्या हो गए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आ गया, आई होप आपको कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट कंप्लीट माउंटेन रेंज, और इधर से अरेबियन सी का वाटर, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, अब इधर क्या आगे, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट कंप्लीट रेंज ऑफ ए माउंटेन्स, एंड फ्रॉम दिस साइड वाटर ऑफ ए बे ऑफ बंगाल, एंड दिस स्ट्रिप इज बिटवीन
वेस्टर्न बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के जो बीच के प्लेन आ रहे हैं, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आया समझ में? अब थोड़ा बुक से चलते हैं। ठीक है, along the east and west coast of India lie two strips of plain. Two strips of plain, तभी मैंने यहाँ पे वर्ड strips यूज किया था, STRIPES। ठीक है, मैप में जो दो, एक ईस्ट से दिखा रहा है स्ट्रिप और एक वेस्ट से दिखा रहा है, यही आपके क्या है? प्लेन्स हैं, यही आपके प्लेन्स है। कोस्ट मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, व्हाट पार्ट ऑफ ए लैंड, a water which is in touch, the sea water which is in touch of a land, वो सी का वो वाटर जो किसके टच में है? लैंड के टच में। सी का वाटर जो किसके टच में? दैट इज विद द लैंड। नाउ सी नेक्स्ट, दीज आर नोन एज द कोस्टल प्लेन। ठीक है, अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, यही आपके क्या हो गए? वेस्ट। एक वेस्ट वाली हो गई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट वाले हो गए ईस्टर्न कोस्टल plains. Clear? Now see next है student, a coast is the land beside or near the sea or the ocean. ठीक है, कोस्ट ऑलरेडी, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में आपको कीवर्ड्स पहले पढ़ाए थे। अब देखो बोल रहा है कोस्ट क्या होता है। कोस्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, कोस्ट क्या है? सी का वो वाटर है जो, सी का ले लो या ओशन का ले लो, क्योंकि जैसे यहाँ इंडियन ओशन है, सी का वाटर या ओशन का वाटर जो किसके टच में है? द वाटर विच इज इन टच विद अ लैंड, सो दैट इज अ कोस्ट। दैट इज द रीजन मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले ही तुम्हें कोस्ट बता दी थी, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर कोस्ट का ही मीनिंग क्लियर नहीं है तो फिर क्या चैप्टर समझ में आएगा? कोस्ट इज अ सी वाटर विच इज इन टच ऑफ ए लैंड। सी वाटर भी हो सकता है, ओशन का वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस ऑल अराउंड द इंडियन पेंसुला। ये जो इंडियन पेंसुला है, ये ट्रायंगुलर शेप, साउथ पार्ट जो इंडिया का है। ठीक है, the length of the Indian coastal line is about 7,000 kilometer. Please underline this. Many time in the examination this question asked in one word, what is the length of Indian coastal line? So what is the right answer? Right answer is 7,000 kilometers. See student, please underline it with a pen or a pencil. On the west we have western coastal plains and on the east we have eastern coastal plains. तो आई होप कोस्टल प्लेन्स कहाँ है इंडिया के, कैसे, क्या मीनिंग है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू बुक ही विल टेल यू वेयर इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स, द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन यू। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है? इट लाइज बिटवीन द फ्रॉम दिस साइड अरेबियन सी एंड हियर आर द वेस्टर्न घाट्स। सो इनके बीच में क्या हो गया आपका? इनके बीच में क्या हो गया आपका? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए। ठीक है, एंड वेयर आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? इट लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। सो दिस इज between this, that is the eastern coastal plains. ठीक, अब now it is a long narrow stretch with many small gulfs and bays which form natural harbors. ठीक है, मुंबई in महाराष्ट्र, Vasco in Goa and Kochi in Kerala are the famous natural harbors of this region. मतलब इन महाराष्ट्र में, ठीक है, गोवा, बास्को जो उसका पोर्ट का नाम है, इट इज इन गोवा, एंड केरला में क्या नाम है इसका? कोची। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल लाइन में। आपके वेस्टर्न कोस्टल लाइन के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, और ये वही होते हैं जहां हार्बर होता है, क्योंकि जब वो प्लेस जहां पे शिप खड़ा होगा उसी के अगल बगल की जो सिटी बन जाती है, इसी को पोर्ट बोलते हैं। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन एरिया में कहाँ कहाँ है? एक मुंबई, वन इज गोवा एंड वन इज कर्नाटका। ओके, देयर आर मेनी पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट? जो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न कोस्टल लाइन आई, ठीक है,
सो आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो थोड़ी नैरो ज्यादा है और ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है थोड़ी वाइड है, ये ज्यादा चौड़ी है और ये नैरो है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, I hope you are able to understand up to this, and next topic we will continue with the another video. Thank you student.